Okay, student. Hello, good evening, one and all. Welcome back to physics class. Today, lecture number 6, chapter number 9, optics. In the previous lecture, lecture number 5, we have discussed about the concept or phenomenon of light, that is the total internal reflection. Now, we also define the term critical angle. So, I will just revise in brief the yesterday definition and all. So, critical angle क्या होता है? Critical angle is the angle of incidence in denser medium such that the angle of refraction in rarer medium is 90 degree. So, corresponding angle of incidence in the denser medium is called as critical angle. Okay. Now, what is the total internal reflection? So, total internal reflection क्या होता है? It is the phenomenon of light in which when the light travel from denser medium to rarer medium in such way that the angle of incidence is greater than critical angle, then there is no refraction. So, the rays get reflected bounce back in the same medium, and that reflection is known as total internal reflection. So, here we are concerned with critical term or critical angle. Critical angle. Actually, this critical indicate that what is the meaning of critical. Meaning of critical is that it may apply for the some phenomenon or may not apply, okay, or it is not applicable for one phenomenon or it may applicable be more than two phenomenon, वैसा भी हो सकता है, तो हम उसको बोलते हैं critical word. Okay, so in light, in case of total internal reflection, the angle of incidence must be greater than critical angle. Right. So, but we cannot explain the term refraction. Okay, cannot applicable for critical. Why does it so? Because if the angle of incidence is less than critical angle, then only there will be refraction. There will be refraction. Otherwise, refraction will not occur. Right. हमने देखा कल कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर स्मॉल है, लेस देन क्रिटिकल एंगल है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है. ओके, इफ इट इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा वहां पे? देयर विल बी रिफ्रैक्शन. अनदर मीनिंग ऑफ क्रिटिकल इज critical temperature. It is the temperature at which all three states of matter exist. जैसे what are the three states? Solid, liquid and gases. Okay, so all other temperatures, at all other temperature, how many states are exists? Only two. Okay, at all other temperature, only two states of matter exist. But at critical temperature, we can observe all three states at a time. उसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं. जैसे कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. What is the triple point of water, or what is the critical temperature of water? Triple point of water, 0.01 degree Celsius. At this temperature, all three states of matter coexist. Fine. Now, another term जो है critical velocity. Okay, in liquid or fluid mechanics. In fluid mechanics, you will study in next class. Okay, fluid mechanics. There are two flow: streamlined flow, and turbulent flow. This is the flow of liquid, turbulent flow. Okay, if the velocity of liquid is less than
critical velocity, then there will be streamline flow. स्लोली, स्ट्रीमलाइन मतलब जैसे कैनल में से पानी जाता है, स्लोली पानी जा रहा है कैनल में से, दैट इज द स्ट्रीमलाइन फ्लो. बट व्हेन द वाटर फ्लोज फ्रॉम द वाटरफॉल, अभी हमारे यहाँ सोमेश्वर वाटरफॉल है, दूध सागर वाटरफॉल, तो जो सोमेश्वर वाटरफॉल है वहाँ पे जब पानी गिरता है ऊपर से नीचे, तो क्या होता है, उसकी जो पानी की जो वेलोसिटी दैट इज ग्रेटर दैन क्रिटिकल वेलोसिटी, विच कैन मीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन एनी डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शंस. तो वो जो फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो. ओके, या कोई पाइपलाइन लीक होती है, बड़ी पाइपलाइन है पानी की, और गलती से वो पाइपलाइन डैमेज हो गई, तो जो फाउंटेन निकलता है बाहर, पानी का फाउंटेन निकलता है, सो दैट इज द टर्बुलेंट फ्लो. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ टर्बुलेंट एंड स्ट्रीमलाइन. ओके, तो उसकी जो वेलोसिटी दैट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके, so if the velocity of fluid is greater than critical velocity or at critical velocity, then that flow become turbulent. Okay, तो यहाँ पे जो अगर लेस देन क्रिटिकल है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो. If velocity is equal to critical or more than that, then it converts streamline to turbulent flow. So these are the technical meaning of critical in physics. Okay, तो हमने देखा थर्मोडायनामिक में देखा, फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा, और लाइट में भी देखा, ऑप्टिक्स में भी देखा मीनिंग ऑफ क्रिटिकल. So I hope you all have understood this. Now let's see the application of the total internal reflection. The best application is, there are many applications there, but we are going to study the optical fiber. Okay, तो उसके पहले हम कुछ application लिख लेते हैं. So that application are sparkling of diamond. I have to rub this. Okay, now let us see the application of total internal reflection. The first application is sparkling of diamond. Diamond sparkle even at night also, in the dark also, sparkling of diamond. Okay, second application mirage. Third application is optical fiber. Fourth application is periscope, and fifth application is binocular. तो ये सब एप्लीकेशन आज हम देखने वाले, तो वन बाय वन वी विल सी. ओके, तो सबसे पहले देखेंगे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड. कल हमने देखा कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड. कितना निकाला था, याद आ रहा है? व्हाट इज द इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.41, which is the highest refractive index. Okay, so we know this critical angle IC is equal to sine inverse reciprocal of refractive index. So after solving this, putting the value of this, so we got 24.4 degree. This is the least critical angle for diamond. तो मान लो डायमंड क्रिस्टल लिया हमने. डायमंड स्ट्रक्चर इज कट इन सच वे दैट उसको ऐसे कट किया जाता है, राइट, इन द प्रॉपर वे, मे बी ऑक्टागोनल, मे बी हेक्सागोनल, मे बी हेप्टागोनल, राइट. तो अलग अलग उसको ऐसे कट किया जाता है फ्रॉम मेनी साइड्स, राइट. और गलती से मान लो अंधेरे में डायमंड रखा है और गलती से कहीं पे तो एक लाइट रे आ गया, सिंगल लाइट रे, कहीं पे खिड़की से आ गया, कोई सोर्स ऑफ लाइट से आ गया, तो गलती से अगर एक लाइट गिर गया यहाँ पे, तो इट विल एंटर, यहाँ पे एंटर करेगा वो, राइट. तो एंटर करते क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. अब इसका जो है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो बेंडिंग विल बी मोर और लेस, ऑब्वियसली द बेंडिंग ऑफ लाइट विल बी मोर आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो जैसे लाइट यहाँ पे गिरता है, इंसिडेंट होता है एट एनी वन ऑफ द फेस ऑफ द डायमंड, तो यहाँ पे बेंडिंग ज़्यादा होगा, ये सीधा जाएगा, राइट, सीधा नहीं जाएगा, तो इसे बेंड होगा वो, एंड इट विल बेंड वेरी मच। वाई? बिकॉज डायमंड हैज हाई मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द वेरी स्मॉल क्रिटिकल एंगल। ओके, तो थोड़ा भी अगर क्रिटिकल एंगल बन गया यहाँ पे, राइट, ये जो एंगल है थोड़ा भी बन गया क्रिटिकल एंगल 24.4, तो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड इनसाइड इट, ऐसे रिफ्लेक्ट होता है, वो अपने आप रिफ्लेक्ट होता है, एंड कंटिन्यूसली मल्टीपल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस, ओके, आफ्टर सम टाइम इट विल गेट इमर्ज आउट, फिर बाहर आता है वो, it will emerge from very less number of faces, but it will get reflected, multiple reflection, total internal reflection takes place inside the diamond, और उससे क्या होता है, वो ऐसे चमकता है, जैसे हम दिवाली के टाइम पे आकाश कंदील लगाते हैं, राइट, तो कैसे लाइट ऐसे गिरता है फ्रॉम ऑल द साइड्स, ओके, स्पार्कल होता है, वैसे द डायमंड गेट्स स्पार्कल ड्यू टू द okay, so diamond gets sparkle due to because of the multiple total internal reflection occurs inside the crystal. Okay, the light will get emerge out only from the few faces. Okay, so this is the one of the best example application of total internal reflection. Second application जो है mirage. Second application is mirage. What is mirage actually? Mirage is nothing but the optical illusion. वो क्या होता है? Optical illusion होता है, optical illusion. Okay, you might have observed that जब हम गर्मी में, hot summer में, right, when we are traveling by car or by bus, right, at the afternoon time on the coal tar road, on the coal tar road जो होता है, in front of us when we are traveling on the road, तो आगे ऐसा लगता है जैसे वाटर पॉन्ड है, एक पॉन्ड है, इज जस्ट लाइक अ वाटर पॉन्ड, वाटर पॉन्ड ऑब्जर्व ऑन द रोड। आप बोलोगे कि इससे पानी का पॉन्ड फॉर्म होगा, बट इट जस्ट ऑप्टिकल इल्यूजन। ओके, जैसे हम उसके नजदीक जाते हैं तो लगता है वहां पे कुछ भी नहीं, देयर इज नो एनी वाटर पॉन्ड, एज वी आर ट्रैवलिंग गोइंग नियर बाय दैट डिसअपियर हो जाता है, तो दूर से हमको दिखता है कि वो वाटर पॉन्ड है, बट इट इज कॉल्ड एज मिराज। उसको क्या बोलते हैं? मिराज। तो देखते हैं हाउ डज दिस मिराज अकर, कैसे होता है। तो ये ड्यूरिंग द हॉट समर, ओके, तो क्या होता है कि जो लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर होते, these are the layer of the atmosphere, okay, and you are traveling, you are here, you are observing from here, okay, and यहाँ पे एक ट्री है, ऐसे इमेजिन करो एक ट्री है, so rays are coming from the object, यहाँ से आ रहे हैं, and you know that the hot summer having different density of the atmosphere, तो सबसे ऊपर जो हवा होगी, right, so that air will be cold air, and as you are going down from top to bottom, जैसे ऊपर से नीचे आओगे तो यहाँ पे hot air होगी, right, as there is a hot air means the refractive index, मान लो यहाँ का refractive index μ1 है, यहाँ का μ2 है, यहाँ का μ3 है, यहाँ का μ4 है, okay, तो होता क्या है, the refractive index μ1 greater than μ2 greater than μ3 greater than μ4, तो यहाँ का जितनी हॉट एयर होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, बिकॉज दैट इज द रेयर मीडियम, और कोल्ड एयर होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी, दैट इज द डेंसर मीडियम। सो दिस विल एक्ट एज अ डेंसर मीडियम, दिस विल एक्ट एज अ रेयर मीडियम, ओके। सो व्हेन द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम दी, जैसे यहाँ से रे ऑफ लाइट आता है, ओके, थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ मैं, suppose the ray is traveling like this, so it is traveling from denser to rarer, तो denser to rarer होगा तो क्या होगा, it will bend away from the normal, ऐसे जाएगा,
it will travel like this, bending, it will bend toward the normal. देखो यहाँ पे, so it will bend toward the normal, sorry away from the normal, because the ray of light travel from denser to rarer. Okay, लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसे आती है, at the ground the air is very hot and which makes the angle of incidence which is equal to critical angle. तो यहाँ पे ग्राउंड पे जब रे टच होता है, रीच होता है, तो वहाँ पे कौन सा एंगल बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस सेपरेशन ऑफ मीडिया, क्योंकि हर सेपरेशन ऑफ मीडिया का क्रिटिकल एंगल अलग अलग होता है, डायमंड टू एयर, ग्लास टू एयर, वाटर टू एयर, और यहाँ पे एयर में एयर है, एयर टू एयर मतलब वो डेंसर और रेयर एयर, राइट, सो बिकॉज ऑफ डेंसिटी, राइट, तो ये लेस डेंस एयर है, ये ज़्यादा डेंस एयर है, तो यहाँ पे भी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका भी कुछ क्रिटिकल एंगल होगा. ओके, तो विच इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, द रे गेट रिफ्लेक्टेड बैक. अभी ये क्या है बच्चों, दिस इज हॉट एयर, दिस इज कोल्ड एयर, दिस इज हॉट कोल्ड लाइक दैट. ओके, तो इसका जो डेंसिटी वो बढ़ते जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा एज इट इज गोइंग फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, मतलब डेंसर मीडियम जो डेंसर बनते जाता है. अगर इफ द रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, हाउ इट विल ट्रैवल, इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल. रेयर टू डेंसर जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा, तो इट विल बी लाइक दिस, राइट. और यहाँ पे हम ऑब्जर्वर इज हियर, राइट, तो उसको लग रहा है कि यहाँ से रे आए और रिफ्लेक्ट हो रहा है. ओके, बट when the observer is looking from this side, he seems that the rays are rapid to come from this point. तो यहाँ से आया ऐसा लग रहा है रेज, तो यहाँ पे जो ट्री है वो उल्टा दिखेगा, या फिर यहाँ पे पॉन्ड फॉर्मेशन दिखेगा, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉन्ड, वाटर पॉन्ड यहाँ पे दिखेगा. तो ये जो पानी के जैसा दिख रहा है, तो ये जो ट्री का रिफ्लेक्शन इसमें से दिखेगा उसको, क्योंकि दिस विल एक्ट एज अ क्लियर वाटर, दिस विल एक्ट एज अ क्लियर वाटर एंड द ट्री विल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस, इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज दिखता है, ट्री का इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे दिखेगा. तो दिस ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन कॉल्ड है द मिराज, तो इसी को मिराज बोलते हैं. तो मिराज इज नथिंग बट द ऑप्टिकल इल्यूजन विच अकर ड्यू टू द फेनोमेनन दैट इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, बिकॉज द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स, all are having different refractive index. Okay, the ray of light travel from denser to rarer, so it will go away from the normal, and at one place at the ground there it makes some angle of incidence which is exactly equal to the critical angle, and it get reflected back to the observer. Okay, and observer is in that these rays are rapid to come from this point, and hence we are getting the inverted image of tree. So this is what we observe. आप YouTube पे जाके देखो, जस्ट मिराज डालो, आपको सब कुछ दिखेगा, या फिर जस्ट गिव मी रिमाइंडर इन द जूम मीटिंग. ओके, जो अपना जूम मीटिंग होता है डाउट सेशन, उसमें आपको मैं इसका वीडियो दिखाऊंगा. ओके, सो जस्ट गिव मी रिमाइंडर. ओके, तो ये हो गया मिराज. अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है, द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ऑप्टिकल फाइबर. ओके, यू माइट बी ऑब्जर्व, आजकल हमारा जो 4G 5G चल रहा है, इंटरनेट जो चल रहा है, मोबाइल जो फास्ट चलता है, जो इंटरनेट चल रहा है, राइट, जो हाई स्पीड इंटरनेट है, तो हाई स्पीड इंटरनेट इट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली ऑप्टिकल फाइबर. जैसे जियो वालों ने डाला है, राइट, ऑप्टिकल फाइबर. ओके, दे हैव गिवन द गुड प्रोविजन टू अस, राइट. सो दे हैव इंस्टॉल्ड द ऑप्टिकल फाइबर अंडर द ग्राउंड एंड दे प्रोवाइडेड अस द गुड कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, इसलिए आजकल लॉकडाउन में मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंड ऑन द इंटरनेट ओनली. ओके, विदाउट इंटरनेट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, और उसके लिए हाई स्पीड चाहिए, स्पीड ज़्यादा चाहिए. तो स्पीड कैसे मिलेगा आपको, ऑप्टिकल फाइबर से मिलेगा. तो अभी हम ऑप्टिकल फाइबर का जो एप्लीकेशन है वो डिटेल में पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लो. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर. यू मैट हैव स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. हमको पता है कि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो लाइट गेट स्टॉप और लाइट विल गेट ऑब्स्ट्रक्ट. मीन्स वी कैनॉट बेंड द लाइट. वो पहले कंसेप्ट है कि लाइट को हम बेंड नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन. बट देयर आर द वन साइंटिस्ट, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट देयर इज वन साइंटिस्ट हु वर्क ऑन दिस कि इज इट पॉसिबल टू बेंड द लाइट. येस, इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग द ऑप्टिकल फाइबर. तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली.
सो दिस इज द ऑप्टिकल फाइबर. आपने कई मेले में देखा होगा कि ये जो खिलौना होता है एक जस्ट लाइक अ फ्लावर वेस. ओके, तो इसको यहाँ पे बैटरी डाला है, यहाँ पे बैटरी रहता है और यहाँ पे एलईडी बल्ब लगा है छोटे छोटे. तो अभी एक जरा आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, ख़राब हो गया, राइट, तो चल नहीं रहा है. तो इसको यहाँ पे एलईडी बल्ब डालने का, और यहाँ पे ये ऑप्टिकल फाइबर का वन एंड है, यहाँ पे ऐसे लगा दो, राइट, और बटन ऑन कर दो तो लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम दिस सोर्स टू द इट्स एंड. सोर्स से एंड तक जाता है. ओके, इवन इफ यू बेंड दिस, अभी लाइट जल रहा है, इवन इफ यू बेंड इट तो लाइट विल नॉट स्टॉप, तो लाइट जाता रहेगा. सो बेंडिंग ऑफ लाइट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. वी कैन बेंड द लाइट. अगर लाइट बेंड हो गया, कितना भी कैसे हो, आजकल हमारा जो लैंड केबल है, राइट, इंटरनेट का जो केबल है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है. उससे क्या होता है, हमको जो सिग्नल है, इंटरनेट सिग्नल है, वो अनइंटरप्टेड मिलता है, हमको इंटरप्ट नहीं होता है. तो पहले हम लोग कॉपर केबल यूज़ करते थे, मेटालिक केबल यूज़ करते थे, लेकिन उसमें काफ़ी लॉस ऑफ सिग्नल आता था. तो बार बार जो इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है ओनली बिकॉज ऑफ द मैनुअल कॉपर केबल. तो ऑप्टिकल फाइबर अगर आपने यूज़ किया तो क्या होगा, डायरेक्ट यू विल गेट द सिग्नल बिकॉज दैट सिग्नल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. तो ये ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है कि हम यहाँ पे इनपुट पे अगर लाइट सिग्नल दिया तो आउटपुट पे वो लाइट टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है. यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर होता है, राइट. तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट द लाइट सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल और एनी अदर रिक्वायर्ड सिग्नल, उसमें वो कन्वर्ट होता है. दिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हमारा जो अल्ट्रासोनोग्राफी है या डॉपलर इफेक्ट है, जो भी मेडिसिन में, मेडिकल में जो एपरेटस हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसमें सब में ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज होता है. एंडोस्कोपी जो होता है, एंडोस्कोपी क्या करता है, एंडोस्कोपी मतलब कि दे जस्ट इंसर्ट दी मेटालिक पाइप, ओके, इन आवर माउथ और ईयर और नोज, राइट, एनीवेयर, थ्रोट, कहीं पे भी वो इंसर्ट करते हैं, राइट. एंड दे कैन सी कि वेदर यूर डायफ्राम, ईयर डायफ्राम डैमेज और नॉट, और नाक में अगर स्वेलिंग है, साइनस का प्रॉब्लम है, तो दैट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोपी. तो एंडोस्कोपी क्या होता है, वो ऑप्टिकल सिग्नल सेंड करते हैं, and that endoscopy is used by the optical fiber. Okay, so it has a wide application. Optical fiber has a wide application. तो देखते कि ये ऑप्टिकल फाइबर है क्या. दिस वेरी थीन ग्लास. ये जो फाइबर है, हमारे बाल जो होते हैं, सर के बाल, वो सर के बाल जैसे इतना पतला होता है, देखो बहुत पतला है. यू कैन सी इट वेरी फाइन, थीन एयर लाइक स्टैंडर्ड ग्लास, बट दिस इज मेड ऑफ ग्लास. ओके, और उसके ऊपर ग्लास का कोटिंग किया हुआ है, राइट. ऑलरेडी बहुत पतला है, उसके ऊपर कोटिंग किया हुआ है. तो लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. एन ऑप्टिकल फाइबर इज एयर थीन लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ क्वालिटी ग्लास. इसका जो ग्लास होता है दैट इज द क्वालिटी ग्लास यूज होता है, राइट. और क्वार्ट्ज इज ऑल्सो वन ऑफ द मटेरियल सराउंडेड बाय अ ग्लास कोटिंग ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसमें जो कोटिंग होता है वो कोटिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और जो अंदर का ग्लास होता है, जो ट्यूब होता है अंदर का ग्लास ट्यूब, दैट इज हैविंग अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हम देखेंगे कि व्हाई वी आर टेकिंग द हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आउटर जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम क्यों है, राइट. इट इज यूज्ड एज अ गाइडेड मीडियम फॉर ट्रांसमिटिंग एन ऑप्टिकल सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वी कैन से द ऑप्टिकल सिग्नल. चलो अभी इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे. वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर. ओके, तो चलो उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे. द ऑप्टिकल फाइबर इज लाइक दिस. ये अंदर कोर होता है, इसका डायमीटर लेस देन 0.5 मिलीमीटर से कम होता है, 0.4 मिलीमीटर होता है. तो ये होगा हमारा कोर. तो ये जो मटेरियल यूज किया यहाँ पे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है RI. ओके, तो जो है सपोज इट इज N1 इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54, एंड दिस इज कवर्ड बाय दी another coating whose refractive index, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, कम होगा. N इसको बोलते हैं क्लैडिंग. इसका होता है 1.42 समथिंग. ओके, लेस दैन दिस. तो ये जो आउटर कवरिंग है उसका, जो फाइबर का, उसको बोलते हैं क्लैडिंग, और जो इनर है उसको बोलते हैं कोर, विच इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लास. बट वो जो ग्लास होता है
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज 1.54. और जो उसके ऊपर जो कोटिंग किया जाता है, दैट कोटिंग इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.42. ओके. और ऐसे नंबर ऑफ फाइबर्स, ये जो नंबर ऑफ फाइबर्स है ऐसे बंच किया जाता है. ओके. दिस कैन बी बंच इनटू 10 फाइबर, 100 फाइबर लाइक दैट. ओके. और उसके ऊपर एक शीथिंग किया जाता है, उसको बफरिंग किया जाता है just for protection. Okay, so this fiber were protected by the buffering material which is made up of low density polyethylene. LDP material यूज होता है, वो LDP से उसको कोटिंग किया जाता है. आप कभी भी जाओगे तो BSNL ऑफिस वगैरह, तो वहाँ पे जो बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, तो वो जो ड्रम्स है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है. ओके. तो उस पर शीथिंग किया जाता है, कोटिंग किया रहता है ब्लैक वाला, उसके अंदर ये नंबर ऑफ फाइबर होते हैं. तो एक जो फाइबर है, दैट वन सिंगल फाइबर कैन ट्रांसमिट अबाउट 90,000 सिग्नल एट ए टाइम. ओके. बहुत इंपॉर्टेंट है. सो तो दिस इज कॉल्ड एज क्लैडिंग. द आउटर कोटिंग फॉर द फाइबर इज क्लैडिंग, इनर इज कोर. ओके. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यहाँ पे N1 ग्रेटर दैन N2, और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय μ1 ग्रेटर दैन μ2. तो अंदर जो कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव ज़्यादा, म्यू और क्लैडिंग का कम होता है. तो लेट अस सी व्हाट इज अ कोर. कोर क्या है वो लिख लेते हैं. कोर इज द सेंट्रल सिलेंड्रिकल कोर is made up of high quality glass or silica or plastic, glass, silica or plastic of refractive index μ1 and has a diameter about कितना होता है 10 to 100 माइक्रोन, 10 to 100 माइक्रोमीटर. वेरी स्मॉल डायमीटर, आपने देखा मैंने प्रैक्टिकली. ओके. सो दिस इज व्हाट द कोर. और उसके ऊपर जो होता है दैट इज द क्लैडिंग. तो चलो अभी क्लैडिंग के बारे में लिखेंगे. सो विल राइट अबाउट क्लैडिंग. तो क्लैडिंग क्या होता है? क्लैडिंग इज द आउटर कवरिंग. क्लैडिंग. ओके. सो द कोर इज सराउंडेड बाय glass jacket of glass or plastic jacket of refractive index μ2 which is less than μ1. ओके. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होता है विच इज लेस देन μ1, कोर से कम होता है. राइट. सो इसका 1.48 होता है, सॉरी नॉट 42, इट इज 1.48. इसका होता है 1.52. थोड़ा नंबरिंग में गड़बड़ हो सकता है. ओके. तो कोर का जो है, द कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 और क्लैडिंग का होता है 1.48. थोड़ा डिफरेंस होता है. राइट. तो अभी देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क्स. ओके. चलो हम यहाँ पे अभी ऑप्टिकल फाइबर ड्रॉ करेंगे. यूनिफॉर्म डायमीटर था उसका, और इसके ऊपर एक क्लैडिंग भी लगाएंगे. ये क्लैडिंग है. सो व्हेन द लाइट एंटर, अभी जो अंदर का कोर है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.52 और बाहर का जो होता है 1.48. मतलब दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम. ओके. नाउ व्हेन वी आर सेंडिंग द लाइट सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल, तो यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट होता है. राइट. दैट विल ट्रांसमिट द सिग्नल हियर. यहाँ पे जाएगा, इट विल एंटर हियर. तो होता क्या है यहाँ पे, ये डेंसर और रेयर. So ray of light travel from denser to rarer medium and that makes angle of incidence greater than critical angle. Okay, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, you have to
send the signal, you have to set that source of light in such way that it will makes the angle of incidence which is greater than critical angle for this pair of media. ये पेयर जो है राइट दोनों ग्लास है लेकिन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है राइट तो उसका जो क्रिटिकल एंगल होगा दैट क्रिटिकल एंगल विल बी डिफरेंट ओके तो जो भी 1.52 का जो भी होगा राइट वो क्रिटिकल एंगल आप ढूंढ सकते हो उससे थोड़ा ज़्यादा तो दैट विल मेक द एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड देयर विल बी द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे नो पार्शियल रिफ्लेक्शन देयर इज द अकरेंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या होगा बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा जैसे यहाँ पे रीच होता है अगेन ड्रॉ द नॉर्मल जो भी एंगल आएगा दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल एंड हेंस द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड अगेन यहाँ पे जब लाइट गिरेगा तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल तो इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस और पूरे इसमें वो ऐसे चला जाता है और आउटपुट में जो इंटेंसिटी यहाँ पे थी वही लाइट यहाँ पे मिलता है and it travel with the speed of light 3 into 10⁸ meter per second. That's why the optical fiber cable transmit the signal very fast. इसलिए आजकल हमारा जो मोबाइल वगैरह है जो भी कम्युनिकेशन है इतना जल्दी क्यों रिंग जाता है जैसे हमने दबाया डायलर टोन दबाया तुरंत तो फोन जाता है राइट तो हाउ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल दैट सेंड सिग्नल टू द ट्रांसमीटर टू सैटेलाइट एंड सैटेलाइट को उधर रिसीव करता है जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहाँ पे तो ऐसे ये कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है वी विल स्टडी ऑल दिस इन चैप्टर नंबर 13 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन उसमें सब है वो कैसे काम करता है ओके तो बच्चों दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ओके तो यहाँ पे क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सो व्हाट फेनोमेनन टेक्स प्लेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस तो यहाँ पे जो एंगल आए that angle I is greater than critical angle for this pair of media okay तो ये ऐसे नंबर ऑफ फाइबर्स एक ट्यूब में उसको पास करते हैं एंड दैट ट्यूब इज नथिंग बट दी प्लास्टिक जो भी होता है कोटेड किया जाता है सो दैट विच प्रिवेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसको मिलता है नहीं तो आप ऐसे सिंगल फाइबर लोगे अगर वो गलती से खींचा केबल को खींचा तो ये टूट जाएगा राइट तो टूट जाएगा ज़्यादा ये नहीं इसको दिस विल ब्रेक टूट गया देखो ब्रेक हो जाता है वो ओके सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग दी ऑप्टिकल फाइबर सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर दी एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ओके तो ऑप्टिकल फाइबर यूज इन मेडिसिन मैंने आपको बताया कि एंडोस्कोपी में यूज होता है सोनोग्राफी में यूज होता है बहुत सारे उसके एप्लीकेशन है राइट अल्ट्रासोनिक जो होता है टेस्टिंग उसमें भी यूज होता है देन आल्सो यूज for the dimensional picture they are used for transmitting optical signal and two dimensional picture 2D जो पिक्चर होता है उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है ओके देन इट आल्सो यूज इन टेलीकम्युनिकेशन जो मैंने अभी बताया ओके इट आल्सो यूज इन द फॉर्म ऑफ फोटोमेट्रिक सेंसर में यूज होता है आर यूज फॉर मेजरिंग द ब्लड फ्लो इन द हार्ट तो जो हमारा हार्ट का जो ब्लड फ्लो होता है दैट कैन बी मेजर जो ब्लड प्रेशर है स्टिग्मोमैनोमीटर उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है then also used in refractometer it is also used in refractometer मैं सब नोट्स में दिया है आप एक बार पढ़ लो ओके इधर theoretical part है तो all these notes you will get you can go through it okay then also used for the broadband width for TV signal की broadband के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है मैंने बताया कि सिंगल ऑप्टिकल फाइबर कैन ट्रांसमिट 90,000 सिग्नल कितने 90,000 signal at a time okay can be sent at a time independently okay then it is also immune to electromagnetic interference इसका एक बेस एडवांटेज क्या है कि अगर मान लो ऑप्टिकल फाइबर केबल जा रहा है तो उसका जो लाइट सिग्नल का और बाजू बाजू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है लेकिन उसके जगह पे अगर आपने मेटालिक केबल लिया तो मेटालिक केबल क्या करेगा दैट विल प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड ओके और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो वो इंटरफेयर कर सकता है सराउंडिंग के साथ सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज दैट इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को वो नहीं करता है ओके एंड इट इज इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव चलो फटाफट लिख लेते हैं सब एप्लीकेशंस
So immune to electromagnetic interference, immune to इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, जैसे हम अभी कोरोना में देखेंगे इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, कोरोना को फाइट करना है, वैसे यहाँ पे ये जो ऑप्टिकल फाइबर है दैट फाइट विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, वो नहीं होने देता है, राइट. देन द लो अटेन्यूएशन लॉस, द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, लो अटेन्यूएशन लॉस. जैसे आपने अगर टेलीफोन वायर के लिए अगर केबल यूज़ किया, कॉपर केबल यूज़ किया, कॉपर वायर यूज़ किया, तो उसमें इलेक्ट्रिकल लॉस ज़्यादा होता है. तुम्हारा कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस काफ़ी वो लॉस करता है. कभी कभी हम जब पहले बात करते थे तो कभी कभी क्रॉस कनेक्शन लग जाता था, या फिर 2-3 आदमी एट अ टाइम बात करते थे, तो कैसे हो जाता है? बिकॉज ऑफ सब क्रॉस इन द कॉपर केबल. अभी ऑप्टिकल फाइबर में क्रॉस कनेक्शन ज़्यादा होता नहीं है, बहुत कम होता है, वेरी रेयरली. तो वाई? बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर हैज़ अ प्रॉपर्टी विच हैज़ अ लो अटेन्यूएशन लॉस. ओके, तो अटेन्यूएशन लॉस नहीं, यहाँ पे अटेन्यूएशन लॉस कम होता है, ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल. इसलिए वी कैन इंस्टॉल दी लॉन्ग ऑप्टिक फाइबर केबल. किलोमीटर उसका है, 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर से लंबाई हो सकती है, राइट. तो लॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर केबल कैन बी यूज. देन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर इज मेड अप ऑफ ग्लास. तो ग्लास क्या है? इंसुलेटर है. ओके, कोई शॉक लगने का कोई चांस ही नहीं यहाँ पे. नो इश्यू विद द ग्राउंड लूप्स ऑफ मेटल वायर और लाइटनिंग. तो लाइटनिंग का भी नहीं होता है, प्रिवेंट फ्रॉम लाइटनिंग. ओके, देन लूप्स ऑफ मेटल, लूप्स ऑफ मेटल कोई कंसर्न ही नहीं यहाँ पे, देर इज नो कंसर्न एट ऑल, नो इश्यू विद द ग्राउंड, लूप्स ऑफ मेटल वायर और लाइटनिंग. कितना भी लाइट नहीं आने दो, इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला. देन द थेफ्ट प्रिवेंशन, चोरी भी नहीं होगा, थेफ्ट प्रिवेंशन, थेफ्ट प्रिवेंशन. ओके, इट डज नॉट यूज कॉपर और अदर एक्सपेंसिव मटेरियल. ओके, तो कोई चोरी भी नहीं करेगा. सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. इंटरनल डैमेज इज मोस्ट लाइकली अनलाइकली. इंटरनल डैमेज होता नहीं है, इंटरनल डैमेज नहीं होता है, इज मोस्ट अनलाइकली. बिकॉज विच इज प्रोटेक्टेड by the some buffering material. So many applications are there for this optical fiber. Okay, then the next application of total internal reflection is binocular and periscope. चलो इसको नोट डाउन कर लो. Okay, so let us see the next application of total internal reflection which is used in binocular. तो पहले जो बाइनोकुलर थे, मैं आपको दिखाता हूँ बाइनोकुलर कैसे थे पहले. वेरी सिंपल बाइनोकुलर. सी, दिस इज कॉल्ड एज बाइनोकुलर सो दैट वी कैन सी द वाइड व्यू ऑफ द सराउंडिंग, आपके सामने जो भी, राइट. तो इससे लेकिन ज्यादा ये होता नहीं. इसका जो डिस्टेंस है, जो पाइप है, 2 पाइप, तो ये 2 पाइप के बीच में डिस्टेंस कितना है? द डिस्टेंस बिटवीन 2 आइज, 2 आइज के बीच में जो डिस्टेंस हो. ओके, तो ऐसे हम देख सकते हैं, कैन सी लाइक दिस. लेकिन अगर इसके अंदर अगर प्रिज्म यूज किया, स्पेशली राइट एंगल प्रिज्म, तो क्या होता है कि वी कैन सी द वाइड व्यू. जो इनपुट मिलेगा यहाँ पे, तो इनपुट जो मिलेगा दैट विल बी वाइड व्यू. मतलब ऐसे देखोगे तो सिर्फ हम सामने का जितना ही एरिया देख सकते हैं. लेकिन मेन वी आर यूजिंग द प्रिज्म बाइनोकुलर, सो इट विल कवर अ मैक्सिमम एरिया. तो दूर का भी हम देख सकते हैं, या उसको थोड़ा घुमा के जूम करके. आजकल बहुत एडवांस बाइनोकुलर आया है, ये तो बहुत सिंपल वाला है. इसमें सिर्फ ग्लास है, नथिंग एल्स, कुछ इसमें प्रिज्म वगैरह नहीं है. ओके, सिर्फ हम देखने के लिए. ये छोटे बच्चों का खिलौना जैसा है. ओके, मैं आपको सैंपल के तौर पे इसको लाया हूँ दिखाने के लिए क्या होता है. ओके, तो ये उसका स्ट्रक्चर है. पहले देखते कि बाइनोकुलर क्या है. ट्रेडिशनल बाइनोकुलर्स यूज ओनली 2 सिलेंडर, 2 ही सिलेंडर होते हैं. डिस्टेंस बिटवीन 2 सिलेंडर्स कांट बी ग्रेटर देन बिटवीन द 2 आइज, 2 आइज के बीच में. This creates a limitation of a field of view. वो क्या करता है कि सिर्फ छोटा सा एरिया कवर करेगा. ओके, then a prism binocular has 2 right angle
ग्लास प्रिज्म विच अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि राइट एंगल प्रिज्म होता क्या है। सो दिस इज कॉल्ड एज द राइट एंगल प्रिज्म। सी ये एंगल, जो एंगल है दिस एंगल इज 90 डिग्री, ओके। और ये जो दो एंगल हो गए, दिस टू एंगल्स आर 45 डिग्री, ओके। तो ये जो प्रिज्म होगा, दिस प्रिज्म इज नोन एज राइट एंगल प्रिज्म। तो उसमें देखो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन कैसे होता है। आई विल शो दिस। अगर मान लो इफ आई एम यूजिंग दिस, ऐसे यूज किया, सो यू विल गेट द लाइट दिस डायरेक्शन। सी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़ा लाइट बंद करना पड़ेगा, इट इज पॉसिबल टू। लेकिन लाइट बंद अगर किया तो हो सकता है हमको कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आप जैसे इमेजिन करो कि इधर से सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है, कैन यू सी इट? यस, इट इज विजिबल, ओके। तो ये हो गया आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसा आएगा, ओके। तो यहाँ पे एग्जैक्टली नॉर्मली आपको स्ट्राइक करना है, ये सरफेस पे, ऑन दिस सरफेस यू हैव टू स्ट्राइक द लाइट नॉर्मली। थोड़ा भी अगर बेंड हो गया तो वो शायद टोटल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ओके। तो सी अभी एग्जैक्टली दिस बेंडिंग, कैन यू सी इट? आई होप यू आर एबल टू सी दिस, ओके। तो ये जो कंसेप्ट है, दिस इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द राइट एंगल प्रिज्म, एंड यही यहाँ पे हो रहा है, वो अभी हमको देखना है। तो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स, ओके। तो चलो अभी यहाँ पे वाइड इनपुट फील्ड है, वाइड इनपुट फील्ड व्यू, वाइड इनपुट है। नाउ इधर से रेज आ रहे, द रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस, स्ट्राइकिंग हियर नॉर्मली, यहाँ पे गिरा, इट विल गो स्ट्रेट, राइट। तो यहाँ पे जब गिरेगा, when it strike here, so यहाँ पे नॉर्मल आएगा। तो एंगल मेड बाय दिस इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल विल बी 45 डिग्री। और हमको पता है जो ग्लास प्रिज्म होता है उसका क्रिटिकल एंगल जो होता है, द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज 42 डिग्री। हाउ मच? 42 डिग्री। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा, तो क्रिटिकल एंगल विल बी 42 डिग्री। अगर क्रिटिकल एंगल अगर 42 डिग्री है, यहाँ पे जो रे स्ट्राइक हो रहा है वो 45 डिग्री है, तो हमारा कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का? टू गेट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ओके। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो इफ इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन इट विल रिफ्लेक्टेड, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ पे आएगा, ओके। तो जब ये सरफेस पे आएगा तो ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे विद दिस सरफेस, मतलब एक्चुअली यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो रहा है, ओके। तो देयर इज नो एनी डेविएशन, तो सीधा जाएगा और यहाँ पे स्ट्राइक होगा। वापस यहाँ पे 45 डिग्री बना रहा है विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगेन देयर इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट विल गो बैक लाइक दिस। यहाँ पे ऑब्जर्वर है, so this is what the path of ray of light coming from this, okay. Similarly here, when the ray of light coming from this striking here, यहाँ पे गिरेगा, वापस यहाँ पे टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इट विल रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे आएगा, वापस यहाँ पे टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा, then so light get reflected and it will reflected like this and सीधा जाएगा। तो वापस यहाँ पे ऑब्जर्व, आंखें दोनों, these are the two eyes, so we can see it. So this is what the working of the total internal reflection in the what we call binoculars. तो ये binocular का application होता है, okay? So just make a note of this. इसका जो theory मैंने पूरा notes आपको दिया है, just make a note of it. theory note down आप कर सकते हैं। इसको इंडिविजुअली भी आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, मैं डायग्राम ड्रॉ करके देता हूँ। So we'll draw the 4 prism rectangular, 4 rectangular prism होंगे। चार रेक्टेंगुलर प्रिज्म होते, ओके। तो इधर से लाइट आया, यहाँ पे टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हुआ, दिस इज द पाथ। इधर से आएगा भी रे, ड्रॉ द नॉर्मल, इट विल गो स्ट्रेट, यहाँ पे आएगा,
Okay. So same working takes place in the binocular. Okay. तो ये भी डायग्राम ड्रॉ कर लो, वो भी डायग्राम ड्रॉ कर लो. तो बाइनोकुलर में 4 prisms are used in binocular to see the wide view of input. Just maximum हम व्यू कवर कर सकते हैं. आजकल कैमरा मोबाइल कैमरा में पैनासोनिक करके पनोरामा करके एक एप्लीकेशन है. तो पनोरामा क्या करता है? Which cover the maximum area to take the photographs. Okay, next application of total internal reflection is periscope. पेरिस्कोप ऐसा डिवाइस है जिससे हम जो हमको चीज नहीं दिख रही है, मान लो we can see the object behind the open. मान लो ये दीवार है, दीवार के पीछे क्या है वो नहीं मालूम, लेकिन हम पेरिस्कोप अगर यूज किया तो दीवार के पीछे का हम देख सकते हैं. दूसरा एप्लीकेशन पेरिस्कोप जहाँ पे यूज होता है, कभी कभी हम जब कोई प्रोग्राम देखने जाते हैं, स्टेज छोटा होता है, वहाँ पे जो परफॉर्मेंस करने वाले जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं परफॉर्मेंस देखने जाते हैं, कभी कभी रहते हैं कोई शौकीन, उसको ऐश्वर्या राय को देखना होता है, तो ऐश्वर्या राय को देखना है तो उसकी हाइट कम होती है, राइट. तो वो क्या करेगा? ही विल यूज द पेरिस्कोप. तो पेरिस्कोप कैसा होता है? तो पेरिस्कोप इज मेड लाइक दिस. यहाँ पे और एक लेना पड़ेगा. सो पेरिस्कोप ऐसे पाइप रहता है, ओके, इसमें यूज होता है. इट इज यूज लाइक दिस, ओके. कैन सी, सो इट इज यूज लाइक दिस. तो ये जो स्ट्रक्चर ये पेरिस्कोप का है. देयर आर 3 पाइप्स, 1, 2 and 3, एंड वी कैन. तो यहाँ पे स्टेज पे ये फोकस किया जाता है, ओके, और यहाँ पे आदमी ऐसे देखेगा. It is used like this. So this is what the structure of periscope. तीसरा एप्लीकेशन का क्या है पेरिस्कोप का? The person who is under the water, okay, और उसको अगर देखना है कि पानी के सरफेस पे, वाटर सरफेस पे क्या है, कौन सा किसका जहाज है, तो उसको जो जासूसी करनी होती है, तो फॉर दिस जासूसी ही कैन यूज अ लॉन्ग पेरिस्कोप. बड़ा वाला पेरिस्कोप यूज कर सकती है, राइट. लंबा वाला पाइप रहता है. बट इनसाइड दिस पेरिस्कोप द 2 राइट एंगल प्रिज्म आर यूज. 2 राइट एंगल प्रिज्म यूज होते हैं, ओके. तो वो कैसे काम करता है अभी उसका डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, ओके. सो लेट अस ड्रॉ द पेरिस्कोप. यहाँ पे शीप होगा, जो भी है पानी के ऊपर, पानी की सरफेस यहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट होगा, एंड मेड लाइक, ओके. तो यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर देखा यहाँ पे. तो देयर आर 2 प्रिज्म्स आर यूज. 2 प्रिज्म होंगे, राइट एंगल प्रिज्म, ओके. ये कैसा होगा? मतलब इधर से रे आया, इट विल स्ट्राइक, सीधा जाएगा यहाँ पे, ओके. यहाँ पे इट विल मेक्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस greater than critical angle for this glass air interface, okay. तो glass air interface का critical angle कितना होगा? 42 डिग्री. तो उससे ज्यादा बनेगा, 45 डिग्री बना रहा है. तो definitely there will be occurrence of total internal reflection. यहाँ पे जो reflected ray आया, okay, तो सीधा यहाँ पे गिरेगा, it will strike like this. तो सीधा यहाँ पे आएगा, वापस यहाँ पे वो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन बनाएगा, एंड देन इट विल ट्रेवल लाइक दिस. सो दिस इज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. सो दिस इज व्हाट द वर्किंग ऑफ पेरिस्कोप, ओके. चलो देखते हैं. पेरिस्कोप इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर body from inside of water is called as periscope. It consists of 2 right angle prism. The incident rays of light are reflected twice through this prism. 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे. So total inter reflection takes place twice, 2 बार हुआ है. Total inter reflection occurs inside this prism and clear view of the surface of water is obtained. तो surface of water पे यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है,
राइट, कौन जासूसी कर रहा है वो यहाँ पे बराबर दिखने देता है इसको, सबमरीन को, जो भी आदमी यहाँ पे अंडर दी वाटर जो ऑब्जर्व कर रहा है. ओके, सो दिस इज व्हाट द वर्किंग ऑफ पेरिस्कोप. बहुत सिंपल है, राइट. 2 राइट एंगल प्रिज्म यूज किया, 2 बार टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता है, और यहाँ पे जो एंगल बना था एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो दैट द लाइट गेट totally internally reflected back, and here observer is here of the object. Okay, so I hope you all have understood the application of total internal reflection. हमने क्या क्या पढ़ा आज? मिराज पढ़ा, देन डायमंड स्पार्कलिंग वो देखा, देन ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है वो भी देखा, उसके अलग अलग एप्लीकेशन देखे ऑप्टिकल फाइबर के, जैसे एंडोस्कोपी है, ओके, डॉपलर इफेक्ट है, मतलब काफी इट इज यूज इन मेडिसिन, ओके, मेडिकल पर्पज के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज होता है. Then it is also used for transmission of signal, right? जो हमारा टेलीफोन सिग्नल है, मोबाइल सिग्नल है, वो भी ऑप्टिकल फाइबर्स होता है. एक पेरिस्कोप देखा एंड बाइनोकुलर्स. सो ऑल दीज आर दी एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Okay student, let us have one numerical which is solved in the textbook. Textbook solved numerical page number 167, example number 9.5. आप textbook रेफर कर सकते हो. There is a tiny bulb at the center of the bottom of a cylindrical vessel. मतलब it is just like a beaker, okay, cylindrical beaker of diameter 6 centimeter. The diameter of that beaker is given. Height of the vessel is 4 centimeter. Okay, the beaker is filled completely with an optically dense liquid. The bulb is visible from an inclined position but just visible if seen along the edge of the beaker. Determine the refractive index of liquid. तो चलो इसके लिए पहले डायग्राम हमको इमेजिन करना पड़ेगा. फिजिक्स में हमेशा याद रखना कि आपको अगर डायग्राम आ गया कोई भी न्यूमेरिकल का तो ऑलमोस्ट 50% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया, राइट, इफ यू आर एबल टू सॉल्व द डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम. ओके, तो चलो डायग्राम ड्रॉ करते. ये सिलिंड्रिकल वेसल है, फाइन, एंड विच इज filled completely with optically dense liquid. Okay, तो यहाँ तक भरा हुआ है वो, up to its brim the liquid is filled, right, and इसका जो diameter है, this diameter is given 6 centimeter, and the height of this liquid column 4 centimeter. Fine. Then what will be the radius of this cylindrical vessel? तो रेडियस यहाँ पे आएगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी 3 सेंटीमीटर. एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड कि बल्ब इज केप्ट एट द सेंटर. यहाँ पे बल्ब है, देयर इज वन बल्ब विच इज ग्लोइंग, एलईडी बल्ब है, राइट. तो दिस बल्ब इज विजिबल फ्रॉम एनी एंगल, फ्रॉम एनी साइड. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिक्विड से भरा हुआ है तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन. ओके, एंड वेन वी व्यू दिस बल्ब फ्रॉम दिस साइड, यहां से अगर देखा जाए, ओके, तो लेट अस ड्रॉ दी रेज ड्रॉन फ्रॉम दिस, यहां तक आएगा, फिर यहां पे थोड़ा हल्का सा बेंड होगा, इट विल बी बेंड लाइक दिस, फाइन. तो इसको कुछ नाम देंगे हम लोग, राइट. सो बट वेन इट इज व्यूड फ्रॉम द एज ऑफ द वेसल, यहां से, तो सिर्फ इट इज विजिबल ओनली, ओके, सिर्फ दिखता है यहाँ से कॉर्नर से. तो वी कैन ड्रॉ दी एरो. द रे इज कमिंग फ्रॉम द बल्ब टू दिस एज, ये इंसिडेंट रे होगा, दिस विल एक्ट एज इंसिडेंट रे, राइट. और यहाँ से एज से दिख रहा है, मतलब द ऑब्जर्वर इज समवेयर हियर, ऑब्जर्वर यहाँ पे, ऑब्जर्वर इज समवेयर हियर. तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, एंगल आर विल बी 90 डिग्री. ओके, और यहाँ पे जो एंगल है वो ज़्यादा होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन दिस, इससे ज़्यादा होगा. सो बच्चों, अगर हमने इसको R90 लिया तो व्हाट कुड बी दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस? श्योर, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी क्रिटिकल एंगल. तो ये क्रिटिकल एंगल होगा, दिस विल बी द क्रिटिकल एंगल. तो बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, हाइपोटेन्यूज. दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये 5 होगा, सीधी सी बात है. ओके,
तो द एंगल अपोजिट टू 3 डिग्री 3 सेंटीमीटर, तो ये होगा आपका 37 डिग्री बाय यूजिंग ज्योमेट्री. द एंगल अपोजिट टू 4 सेंटीमीटर, तो ये होगा 53 डिग्री. और एंगल अपोजिट टू 5 सेंटीमीटर ये होगा 90 डिग्री. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे और एक ऑप्शन है टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ओके, और इसका साइन निकालना है हमको. तो साइन IC फ्रॉम फिगर साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to, why we have taken this angle of incidence as a critical angle, because यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, राइट. तो अगर ये R 90 बन रहा है तो डेफिनेटली वी कैन हैव दिस एंगल IC विल बी क्रिटिकल एंगल. ओके, चलो निकालते. तो साइन IC क्या होगा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सो इट इज 3/5. इट विल बी 3/5. ओके, तो सब्स्टिट्यूट करते n इज इक्वल टू 1/3/5. सो रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इट इज 5/3. सो वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, n इज इक्वल टू 5/3 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो सिंपल. यहाँ पे tan वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं है उसको, कुछ नो रिक्वायरमेंट एट ऑल. दे डिडंट आस्क, राइट. सिंपली दे आस्क द डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिक्विड का होगा 5/3 होगा. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है. दिस कैन आस्क फॉर 1 or 2 मार्क्स इन CET बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है. ओके, चलो नोट डाउन दिस. ओके, लेट्स हैव द नेक्स्ट न्यूमेरिकल व्हिच इज अनसॉल्व्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 186. नंबर इसका याद नहीं. क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ तो थर्ड होगा शायद, मे बी, नॉट श्योर. सेकेंड और थर्ड होगा, देख लो आप टेक्स्ट बुक में. Estimate the number of images produced if a tiny object is kept in between two plane mirror at 35 degree, 36 degree, 40 degree and 45 degree. ओके, तो चलो यहाँ पे ऐसे दो मिरर दिया है, दो मिरर ड्रॉ करते, which are inclined at an angle. The two mirrors are kept inclined at an angle 35 degree. तो ये एंगल जो है 35 डिग्री. ओके, तो चलो पहला केस लेते हैं. सॉल्यूशन. सपोज इफ θ1 is equal to 35 degree. So we know the number of images, formula for number of images formed by this angle when the two mirrors are inclined by using this 35 degree. Then number of images small n is equal to 360. Number of images formed 360 upon theta, which is equal to 360 upon 35. This will be greater than 10 point something आएगा. तो ये है 10.28, राइट. तो यहाँ पे बच्चों स्मॉल n जो है, स्मॉल m इज नॉट अ प्योर इंटीजर. ओके, हियर स्मॉल n is not an integer. Hence number of images seen, number of images formed will be इसका जो इंटीग्रल पार्ट है उतने इमेजेस फॉर्म होंगे. इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट. सो images seen will be 10. So when the two mirrors are inclined at an angle 35 degree, we will get 10 images. Okay, चलो अभी सेकेंड केस लेते. फॉर द सेकेंड केस, when θ2 is equal to 36 degree, then number of images formed small n is equal to 360 upon 36. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे there will be 10. So here the n is even integer. यहाँ पे क्या है, here small n is an even integer. और जब इवन इंटीजर फॉर्म होता है, the number of images form capital N will be
n minus 1 which is equal to 10 minus 1 which is equal to 9. तो 9 इमेजेस हमको मिलेगा. वेन दिस थोड़ा सा अगर इसको बढ़ाया 1 डिग्री से बढ़ाया तो हमको कितना 10 के बदले में कितना मिलेगा 9 इमेजेस मिलेगा. वी विल गेट द 9 इमेजेस फॉर्म व्हेन द एंगल इज 36 डिग्री. नाउ थर्ड केस लेते हैं. इन द थर्ड केस व्हाट इज द एंगल 40 डिग्री. सो थीटा 3 इज इक्वल टू 40 डिग्री. सो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म फॉर्मूला जो है स्मॉल n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा 3 विच इज इक्वल टू 360 अपॉन 40. 0 0 कट यू विल गेट 9. 4 9 36. तो यहाँ पे जो भी नंबर मिला है ओके. सो हियर n3 लेते इसको और इसको n2 ले लेते. सो बेटर टू अंडरस्टैंड इसको n2 लेते और यहाँ पे n1 आएगा. तो आप n1 n2 n3 ले सकते. तो यहाँ पे जो n3 है हियर n3 इज इक्वल टू 9 विच इज ऑड नंबर. ओके. तो जब ऑड नंबर होगा तो यहाँ पे दो केसेस होगा. ओके. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट on the bisector, angle bisector, the object is kept at the angle bisector, on the angle bisector, then capital N3 is equal to N3 minus 1 which is equal to 9 minus 1 which is equal to 8. This is what the case. Now इसी में जब स्मॉल n3 is equal to odd integer है राइट. तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को बाइसेक्टर पे रखोगे राइट और सॉरी ऑफ साइड ऑफ द बाइसेक्टर रखोगे. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑफ साइड ऑफ द एंगल बाइसेक्टर. चलो डायग्राम में देखते. चलो ये डायग्राम हमारा राइट और ये एंगल कितना है 40 डिग्री. सपोज दिस एंगल इज 40 डिग्री और यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा ऑन द बाइसेक्टर तो हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म. यू विल गेट 8 इमेजेस राइट. मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 इमेजेस मिलेंगे. लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट समवेयर हियर, तो और एक 9th इमेज बढ़ जाएगा राइट. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट आउटसाइड ऑफ द एंगल बाइसेक्टर देन n3 इज इक्वल टू n3 विच इज 9. तो 9 इमेजेस मिलेंगे आपको. ओके. चलो अभी लास्ट वाला लेते. फोर्थ. व्हेन थीटा 4 इज 45 डिग्री देन स्मॉल n4 इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा 4 विच इज 360 अपॉन 45. तो ये आ जाएगा आपका 8. दिस विल बी 8. यहाँ पे इवन इंटीजर है ओके. और जब इवन इंटीजर होता है देन नंबर ऑफ इमेजेस सीन n4 इज इक्वल टू n स्मॉल n4 माइनस 1. सो 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7 इमेजेस विल सीन. ओके. तो जब एंगल 45 डिग्री होगा और वी आर गेटिंग दी स्मॉल n4 इज 8 विच इज इवन इंटीजर. And when we are getting even integer, the number of images seen actually will be n4 minus 1, 8 minus 1 which is equal to 7. So these are the answer. So how many images will form? Consequently अगर देखा जाए तो the number of images seen at an angle 35 degree, 36 degree, 40 degree and 45 degree. R पहला कितना था 10 10. देन सेकंड क्या था इन थीटा 2 दैट विल बी 9. ओके. यहाँ पे कितना था 9. थर्ड कितना था थर्ड एंगल पे 9 और 8 एंड लास्ट में कितना था 7. सो दिस इज द आंसर. ओके. वेरी सिंपल न्यूमेरिकल. आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है देन यू विल नॉट बी रॉन्ग. you will get a correct answer. Just apply the concept which you have discussed earlier. Okay student, so far we have discussed about the refraction through glass slab or reflection through plane mirror. Now we will discuss about
द लेंसेस. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे लेंस क्या होता है. स्पेरिकल लेंसेस, स्पेरिकल मिरर वी हैव स्टडी. ओके, तो स्पेरिकल लेंसेस देखते. गिव द टाइटल स्पेरिकल लेंसेस, क्योंकि अब हम देखने वाले रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस. तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस मतलब थ्रू लेंसेस. सो दे व्हाट इज द लेंस. लेंस होता क्या है. ओके, मान लो ए सॉलिड ट्रांसपेरेंट स्फीयर है. सपोज दिस इज सॉलिड ट्रांसपेरेंट स्फीयर, जो हमारा कभी कभी हम लोग पेपर वेट यूज करते हैं ना, तो स्पेरिकल होता है लेकिन आधा होता है, सेमी स्फीयर होता है वो. तो उसको और जोड़ के बन जाएगा आपका ट्रांसपेरेंट स्फीयर. ओके, तो ये स्फीयर का हम लोग ऐसा कुछ कट करेंगे उसको. वी कैन कट लाइक दिस. इसमें से ऐसा कट कर सकते हैं, या दिस कैन बी कट लाइक दिस. इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, राइट. या दिस कैन बी कट इन दिस वे. इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं. ओके, और दिस स्फीयर कैन बी कट लाइक दिस आल्सो. या दूसरा स्फीयर ले लो, दो स्फीयर का. ओके, तो ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज लेंस. ये क्या होगा. दिस इज कॉल्ड एज लेंस. ये क्या होगा. दिस इज द लेंस. व्हाट इज दिस. लेंस. तो लेंस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट स्फीयर आउट ऑफ विच वन मस्ट बी स्फीयर, स्पेरिकल. वो एक कर होना चाहिए और दूसरा प्लेन भी चलेगा, या दोनों कर या दोनों उसमें एक कर और एक प्लेन भी चलेगा, राइट. तो चलो लेंस का डेफिनेशन देखते. सो लेंस इज अ पीस ऑफ, लेंस इज अ पीस ऑफ व्हाट. ट्रांसपेरेंट. पीस ऑफ transparent refracting medium bounded by two surfaces. लेकिन इसमें दोनों कर हो सकता है, या दोनों में से एक कर और एक प्लेन हो सकता है. ओके, एटलीस्ट वन ऑफ विच must be curve. ओके, चलो अभी डिफरेंस देखते. सो देयर आर टू टाइप ऑफ लेंसेस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. तो हम देखेंगे अभी कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. सो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस. ओके, चलो मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस क्या होता है. सो स्टूडेंट, if you are able to see through the camera, so if you observe carefully, these are the two lenses. Okay, तो the lens which is thicker at the middle, अगर आप ऐसे फिजिकली टच करोगे तो मिडल में इसके स्वेलिंग लगेगा. ओके, बल्ज लगेगा, और कॉर्नर पे वो थोड़ा पतला होते जाता है, तीन होते जाता है, राइट. सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस. ओके, और जो दूसरा लेंस है, इफ यू आर टचिंग फिजिकली, तो सेंटर पे वो थिन होते जाता है और एज पे वो थोड़ा थिक लगता है. सो the spherical lens which is thicker at the edges and thinner at the center, that will be concave lens. Okay, और ये जो होगा which is thicker at middle and thinner at edge, that will be convex lens. Okay, तो convex lens को converging lens भी बोलते हैं और concave lens को diverging lens भी बोलते हैं. अभी देखते हैं कि ये diverging और converging क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ. ओके, तो आई मस्ट टेक द सोर्स ऑफ लाइट. अभी मैं मेरे मोबाइल से फ्लैश लाइट लेता हूँ, बैटरी का, तो टॉर्च लेता हूँ, तो टॉर्च से आपको पता चल जाएगा. ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट. ओके, so let us distinguish between the two lenses, which is convex and which is concave. The convex lens is converging lens. Okay, so let us identify. Now I am focusing the light on this lens. So if you observe carefully, the light get converge at the center on the screen. Okay, तो लाइट पूरा जो है सेंटर पे कॉन्वर्ज हुआ है, तो वी कैन कॉल दिस, और सराउंडिंग में डार्क है, अंधेरा है, राइट, जो रिंग दिख रही है आपको. तो व्हाट इज इंडिकेट, the water the light is striking
on the lens, that light get converge at a point at the center. So this lens will be converging lens, which is also called as convex lens. Got it everyone? Okay, fine. चलो अब इसको check करते. What kind of lens this is? Now if you observe carefully, when I am shining the light on this lens, the light get diverge. तो आउटर रिंग जो दिख रही है उजाला उजाला दिख रहा है और सेंटर पे डार्क दिख रहा है, मतलब वहाँ पे लाइट नहीं है, राइट. और जो सराउंडिंग पे रिंग दिख रही है, राइट, तो वहाँ व्हाट इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट दैट द लाइट गेट डाइवर्ज. तो लाइट डाइवर्ज हो रहा है. सो दिस लेंस इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग लेंस. सी यू कैन सी इट क्लियरली. सो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस. ओके, अभी चलो आप लिख लेते हैं. प्रैक्टिकल हमारा हो गया, अभी लिख लेते हैं. So let us write a distinguish between convex lens and concave lens. So first point, in the convex lens, the lens which is thicker at the middle, thicker at the middle or at the center, and thinner at the edges. At the edges. Okay. तो इसका जो डायग्राम होगा दैट विल बी लाइक दिस. सो दिस लेंस इज कॉल्ड एज, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस विच वी हैव डिफाइंड इन मिरर, spherical mirror. Now concave lens is thinner at the middle and thicker at the edges. इसको अगर ड्रॉ करना है तो इट विल बी लाइक दिस. सो दिस लेंस इज नोन एज कॉनकेव लेंस. ओके, तो ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं बच्चों? द सेकेंड पॉइंट इज दिस कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्वर्जिंग लेंस. This lens converge the light after refraction. जब इसमें रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट क्या होता है? कॉन्वर्ज होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्वर्जिंग लेंस. सो कॉल्ड कॉन्वर्जिंग लेंस. ओके. Now this lens, concave lens, this lens diverge the incident ray after refraction. Okay, so called diverging lens. So it's called diverging lens. थर्ड पॉइंट क्या होगा? इसका जो फोकस होगा प्रिंसिपल फोकस. तो प्रिंसिपल फोकस फॉर दिस कॉनकेव लेंस, अगर मान लो इफ आई टेकिंग इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन के बाद दे विल मीट एट अ पॉइंट. इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी and if the rays are coming from infinity after refraction, they will converge at this point, and this is called as real focus. Why it is so called real focus? क्योंकि यहाँ पे refracted ray जो है they are actually meet at a point on the principal axis. After refraction, the refracted rays are actually meet at a point on the principal axis, and that's why a convex lens form the real focus. Okay, not virtual. But in case of this concave lens, अगर concave lens अगर आपने लिया, राइट, तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस रे इज डाइवर्जिंग लेंस, तो रेज आर गेट डाइवर्ज, तो रेज डाइवर्ज हो गए लाइक दिस. ओके, सो व्हेन वी आर एक्सटेंडिंग दिस डाइवर्जिंग रेज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो दे विल फॉर्म द फोकस हियर. ओके, और ये जो फोकस है, ये फोकस एक्चुअली रिफ्रैक्टेड रेज अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट. वो एक्चुअली नहीं मिल रही, बट वो हमको ऐसा लग रहा है कि they are appear to meet at this point, and that's why which is
it form virtual focus. So concave lens form virtual focus which is not real. Okay, and convex lens form real focus. Okay, so this is the main difference. Okay, physically touch करके देखो आप या उसको अभी हमने practically देखा कि this convex lens is a converging lens which converges the light at one point and this diverges the light. Okay, after refraction. चलो अभी इसका टाइप देख लेते हैं. The types of lenses. What are the three types of lenses? So we will see the type of lenses. Types of lenses. So convex से तीन टाइप और concave के तीन टाइप से. तो we'll see the types of convex lens. पहले convex lens देखेंगे हम लोग. So three types of convex lens: biconvex, then a plano-convex, and concavo-convex. ओके, तो बाय कॉन्वेक्स से होगा, बाय मतलब टू, दो, तो दोनों सरफेस कॉन्वेक्स होंगे यहाँ पे. सो दिस विल बी द बाय कॉन्वेक्स. ओके, प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होगा, एक प्लेन होगा एक कॉन्वेक्स होगा. ओके, सो वी कैन ड्रॉ वन प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस है और एक कॉन्वेक्स सरफेस. सो दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स. कॉन्केव कॉन्वेक्स में क्या होगा, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स होगा. तो दिस इज द कॉन्केव सरफेस और उसके ऊपर एक कॉन्वेक्स होगा. जस्ट लाइक अ आर्क ऑफ द मून, चंद्राची कोर म्हणतो ना आपण. सो चंद्राची कोर जो है दैट इज द कॉन्केव कॉन्वेक्स. ओके, सिमिलरली टाइप्स ऑफ कॉन्केव लेंस, this also has three types, same as that of this. Biconcave lens, then plano concave, then convexo concave. ओके, तो चलो ड्रॉ करते बाय कॉन्केव. तो बाय कॉन्केव मतलब टू कॉन्केव सरफेसेस, इट विल बी लाइक दिस. सो दिस इज कॉल्ड एज बाय कॉन्केव. यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये एक्सिस और ये प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. देन प्लेनो कॉन्केव. तो प्लेनो कॉन्केव कैसा होगा, इट विल बी एक प्लेन सरफेस निकालते, इट विल बी लाइक दिस. व्हाट यू कैन ड्रॉ, सो जस्ट ड्रॉ द प्लेन, ये प्लेन सरफेस और एक कॉन्केव. तो प्लेनो कॉन्केव ये प्लेन सरफेस है और एक कॉन्केव, प्लेन कॉन्केव. अभी कॉन्वेक्सो कॉन्केव. तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव मतलब पहले कॉन्वेक्स निकालेंगे, दिस इज कॉन्वेक्स. फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसको जरा फ्लैट करके देन यहाँ पे, सो ये कॉन्केव आएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्सो कॉन्केव. ये बन गया कॉन्वेक्सो कॉन्केव. दिस इज प्लेनो कॉन्केव, दिस इज बाय कॉन्केव. सो जस्ट ड्रॉ द डायग्राम, इज वेरी सिंपल. ओके, तो वे इसको याद रखना बहुत आसान है. प्लेनो कॉन्केव, वन सरफेस इज प्लेन, अनदर इज कॉन्केव. कॉन्वेक्सो कॉन्केव, वन इज कॉन्वेक्स, कॉन्केव. बाय कॉन्केव, बोथ आर कॉन्केव. इधर कॉन्केव कॉन्वेक्स, यहाँ पे एक कॉन्केव है एक कॉन्वेक्स है. प्लेनो कॉन्वेक्स, वन इज प्लेन, अनदर इज कॉन्वेक्स, and biconvex, both are convex surface. Very simple to remember the names. Okay, note down this. Okay student, now let us see different terms connection with spherical lenses. तो पहला टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, तो लेंस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर. लेंस क्या है, पार्ट ऑफ स्फीयर है. तो अभी मेरे पास जो लेंस है, सी इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, दिस लेंस इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर. इसका टुकड़ा मैंने निकाला इसे, इट विल बी लाइक दिस. ओके, तो इसका जो सेंटर होगा, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस विल बी द ऑप्टिकल सेंटर. और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दैट विल बी द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट.
तो चलो पहले स्फीयर ड्रॉ करेंगे. दिस लेंस ये कॉन्वेक्स लेंस में ड्रॉ कर रहा हूं. ओके, सो दिस लेंस, अगर एवरी लेंस हैज टू सरफेसेस, दो सरफेस होता है. दिस इज सरफेस 1, दिस इज सरफेस 2. ओके, सो सरफेस 1 इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, ये इसका पार्ट है. ओके, and the surface 2 is the part of the sphere. So center of curvature is defined as it is the center of sphere of which the lens is a part. It is the center of sphere of which the lens is a part. अभी ये जो biconvex lens है, this biconvex lens is the part of these two sphere which are surrounded by it. So every lens will have two center of curvature. तो हर लेंस को कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? 2, राइट. तो अभी ये जो पहला वाला है, इट इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर, तो चलो मैं इसको नाम दे देता हूं C1. और ये जो सेकंड सरफेस है लेंस का, दैट सेकंड सरफेस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर, तो इसको मैं नाम दूंगा C2. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, राइट. सो अगेन आई रिपीट, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी लेंस इज डिफाइंड एज इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, is the center of sphere of which the lens is a part. It is the center of sphere of which the lens is a part. It is called as center of curvature. सेम डेफिनेशन हमने इसमें लिख दिया है मिरर में, तो वैसे ही इसको एनालॉगस करना है, कोई बात मैं लिख के नहीं देने वाला. सेकेंड डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय आर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. मतलब यहां पे ओके, ये जो यूजुअली वी आर टेकिंग थीन लेंस, यहां पे थीन लेंस लेंगे, तो ये जो रेडियस होगा स्फीयर का, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर? द रेडियस ऑफ द स्फीयर विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द लेंस. इट इज रेडियस ऑफ स्फीयर of which radius of sphere of which the lens is a part, lens is a part which is denoted by r. उसका यूनिट क्या होगा? मीटर और सेंटीमीटर, करेक्ट. तीसरा डेफिनेशन क्या होगा? तीसरा डेफिनेशन होगा ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर हमने उसमें मिरर में क्या लिया था बच्चों? मिरर में हमने लिया था पोल ऑफ द मिरर, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा. तो ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस. इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर. सो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर. So this is the third definition. Fourth definition is principal axis. Fourth definition is principal axis. It's very simple. Principal axis. तो principal axis क्या है बच्चों? Principal axis is the imaginary line passing through both the center of curvature. दोनों center of curvature में से जाने वाली जो लाइन होगी, that will be the principal axis. The line passing through it is a single line, okay, single line passing through both center of curvature. तो ऑटोमेटिकली वो ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी तो जाएगी, इट विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर आल्सो. लेकिन वो मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऐसे नहीं लिख सकते. यू कैन नॉट टेक दिस लाइन विच इज पासिंग थ्रू सिंगल ऑप्टिकल सेंटर. सिंगल में से जाने वाले तो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होगी, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जानी चाहिए. दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो लाइन जाएगी, दैट विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, C1 एंड R1 एंड R2 जो भी लाइन है. देन ऑप्टिकल सेंटर होगा. देन द प्रिंसिपल फोकस. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस
ओके तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, अभी मान लो जस्ट लाइक अ मिरर हमने डिफाइन किया मिरर में, वैसे यहाँ पे भी करना है. टेक दी कॉन्वेक्स लेंस, टेक दी इंसिडेंट रे विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ओके तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ मिलेंगे, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके सो दे विल मीट समवेयर हियर. So this point is called as principal focus of convex lens. Okay so when incident rays are parallel to principal axis after refraction they will meet at a point on the principal axis. It's called that point is called principal focus of a given lens. So every lens has to focus. कैसे देखो, अगर मान लो इफ आई एम टेकिंग दिस सरफेस, अगर ये मैंने सरफेस लिया और इधर से लेफ्ट साइड से मैं एज पर आवर साइन कन्वेंशन वी आर स्ट्राइकिंग द इंसिडेंट रे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट दिस पॉइंट. ओके सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस सरफेस राइट साइड सेकेंड पार्ट और इधर से रे डाला पैरेलल रेज, तो दे विल मीट एट समवेयर हियर, तो यहाँ पे मिलेंगे. तो एवरी लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकस. ओके तो कॉन्केव लेंस ले कैसे डिफाइन करोगे, कॉन्केव लेंस ले, फॉर कॉन्केव लेंस यू विल गेट डाइवर्जिंग रेज, और व्हेन दिस डाइवर्जिंग रेज मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, सो दैट विल बी द प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव लेंस. राइट और फोकल लेंथ क्या होता है, इज वेरी सिंपल विच ऑलरेडी डिस्कस लॉट इन द स्फेरिकल मिरर. तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस. तो ये ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द फोकल लेंथ फॉर द गिवन लेंस. ओके सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टर्म्स कनेक्टेड टू द कॉन्वेक्स लेंस. एपर्चर क्या होता है, एपर्चर इज द एक्सपोज पार्ट ऑफ द लेंस. अगर मान लो ये पूरा जितना भी डायमीटर है तो इसके क्या बोलेंगे, एपर्चर. दिस विल बी द एपर्चर. अगर मान लो मैंने इसको ढक दिया, ऐसा क्लोज कर दिया, तो इसका एपर्चर कम हो गया. तो एपर्चर इज द एक्सपोज पार्ट ऑफ द लेंस, इज कॉल्ड एज एपर्चर. ओके आज बस इतना ही. इन द नेक्स्ट क्लास नंबर 7 में, लेक्चर नंबर 7 में हम देखेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल surfaces. Okay till that, bye bye, see you, have a good day, take care.